Hello everybody, how are you? Welcome to all on my YouTube channel. And today's topic, test measurement in schools, and chapter number 6. And yesterday we have discussing about the Howard step test and different upper step test, different components for related to measure the health, strength, and measure the endurance, agility, coordination, and also flexibility by the such and this test. And in upper test, I have discussing some components related to motor fitness test. We can see that in motor fitness test mainly measure in different institute and different organization, very helpful by the AFER test. AFER means American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance. That is formulated 6 batteries, and these 6 batteries measure the 6 different components. So the following measures components here. First is 50 meter standing dash. We can say that 50 meter is running, that is measure your speed, and 600 meter run, that is measure your endurance. That is some different endurance measurement test. Now sit in this test measure your flexibility of your arms and flexibility of your backs, and partially curl ups is a purpose to measure your abdominal strength and your oblique strength. We can say that core muscles strength. Core muscles means that is very helpful for any movement, that is called core muscle. Core muscle used measured by the partially curl up. Now second, push-ups for measure your strength of your arms and endurance of your arms. And push-ups measure for different push-ups types, like for men's and women's. In women's have modified push-ups. In modified push-ups, women have normal push-ups. In men, when toe touch the ground and both hand touch the ground. And modified push-ups in female for touch both knee and both hand touch the ground. And modified push-ups used for female, we can say girls child. And now that is push-ups measure for your upper body strength and endurance. Now second component is standing broad jump. Standing broad jump measure the explosive strength of your legs and your core muscles. And explosive strength also says that power in your body, measure by power in your body, because explosive strength is says that the ability of muscles, strength with speed के साथ strength को ही हम बोलते हैं explosive strength. Then जब speed के साथ strength लगाते हैं ना, उसे ही क्या बोलते हैं, that is called power. So in AFER test, ये motor fitness test, mainly AFER is measure your power of your legs. So standing broad jump also measure your power. Then shuttle run means 4 into 10. 4 into 10 means 4 into 10 meter. Shuttle run. Four into 10 means 10 meter and 4 rounds. First round 10 meter, then back, then 10 up, then back. As 4 rounds, while 4 meter go 10 meter. Take it by go speed, and by 10 meter up and 10 meter down and 10 meter up and 10 meter down. That is 4 rounds. So shuttle run is mostly preferred 4 into 10 meter. So 4 into 10 meter is shuttle run. Measure your agility. We can see that measure your speed. स्पीड भी चेक हो रही है उसके साथ, देन आपकी एजिलिटी भी चेक, क्विक रिएक्शन जो आ रहा है आपका, देन रीच करके फिर वापस आना, देन रीच करके फिर वापस आना, तो दैट इज कॉल्ड योर एजिलिटी. सो इन एजिलिटी शटल रन मेजर योर एजिलिटी. दैट इज मोर वी कैन सी दैट कॉमन मोटर फिटनेस टेस्ट. We can see that common motor fitness test and mostly used in AFER test. Now next in our syllabus
Measurement of cardiovascular fitness, Harvard step test and Rockport test. Harvard step test and Rockport test. First, we are discussing about Harvard step test. Harvard step test. Harvard step test mainly invented in 1943 by the Lucien Brouwer in 1943 and measure for 30 steps per minute. We can say that for the 5 minutes 30 steps per minute means एक बॉक्स रहता है, इसमें एक बॉक्स रहता है, देन एक बॉक्स पे आपको अप करना है, डाउन करना है, अप करना है, डाउन करना है। इसकी हाइट रहती है 20 इंच। इसमें एक बॉक्स रहता है फॉर मेंस के लिए जिसमें स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन मीन्स एक कदम ऊपर तो एक कदम नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसी 30 स्टेप्स 1 मिनट, 30 स्टेप्स इन 1 मिनट। एंड जो बॉक्स हाइट है, बॉक्स हाइट इज 20 इंच, बॉक्स हाइट इज 20 इंच फॉर मेल, 20 इंच फॉर मेल एंड 60 इंच फॉर बॉक्स हाइट इज फीमेल। 20 इंच मेल and 16 inch female. Inch male, 16 inch female. That is box height. Box height steps up and step down and 30 steps in 1 minute for the 5 minute. 5 मिनट तक आपको 30 स्टेप 1 मिनट की रेशो से आपको 5 मिनट तक करना है। देन आफ्टर बॉडी एग्जॉस्ट होने के बाद 5 मिनट के बाद आपको रेस्ट लेना है। देन आपकी रेस्ट लेने के बाद 1 to 5 मिनट के बीच में आपकी हार्ट बीट काउंट होगी। हार्ट बीट काउंट होगी किसमें? 1 to 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट के बीच की। देन इसके बाद 2 to 2.5 मिनट के बीच में आपकी मेजर होगी क्या? हार्ट बीट। देन 3 to 3.5 मिनट के बीच में आपकी फिर मेजर होगी। सो फॉर्मूला फिर देन दिस वैल्यू पुट ऑन फिजिकल एफिशिएंसी फॉर्मूला। फिजिकल एफिशिएंसी फॉर्मूला से इज दैट फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स से इज दैट ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड, ड्यूरेशन of exercise in second and multiply by 100 divide by 2 sum of 3 pulse count sum of 'pulse count'. That is a physical efficiency formula measured by the duration of exercise। 5 मिनट को ड्यूरेशन में करना है सेकंड में, देन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ 3 पल्स रेट। 3 पल्स रेट का सम करके देन 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू आएगी उसे फिर फिजिकल एफिशिएंसी वैल्यू बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट टेस्ट फॉर मेजर द कार्डियोरेस्पिरेटरी इंडेक्स, रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट। And in height of platform 18 inch and stepping 24 times and recovery pulse rate count only once for 30 seconds after 1 minute of 30 सेकंड के लिए एक बार में सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए काउंट करेंगे पल्स रेट को, सिर्फ 30 सेकंड्स। जैसे 1 से 1.5 मिनट तक है, सो उसमें 1 to 1.5 मिनट तक
1.5 मिनट तक 30 सेकेंड पल्स काउंट की, फिर देन 2 से 2.5 मिनट तक 30 मिनट्स की, वो 30 सेकेंड्स की काउंट की। एंड ऐसे काउंट करने के बाद फिर उन्हें सम करके मल्टीप्लाई करना। दैट इज अवर मेजर फॉर अवर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। वी कैन से दैट फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स। फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स से हम फिटनेस अपने इंडिविजुअल की मेजर करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट इज रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट। नाउ another test for measure the cardiovascular endurance. Cardiovascular endurance first measure the Howard step test and second measure the Rockport fitness walking test. Second measure the Rockport fitness walking test. In Rockport fitness walking test measure your cardiovascular endurance. By the help of, we can say that Rockport fitness test also measure your aerobic fitness and aerobic fitness through assessment of their, इससे aerobic fitness measure करता है। aerobic fitness किससे मेजर होती है aerobic fitness? aerobic मेजर होती है VO2 max से। VO2 max means maximum volume of oxygen। maximum volume of oxygen that is called Rockport fitness walking test. In Rockport fitness walking test measure first your aerobic fitness and VO2 max. If you can say that maximum volume of oxygen we can say that aerobic fitness जो VO2 max है वो किसको डिनोट कर रही है? aerobic fitness को डिनोट कर रही है। सो इसके aerobic fitness मीन्स ये aerobic fitness को हम कब मेजर करते हैं? जब हमारी किसको मेजर कर रहे हैं? तो किसके थ्रू हो रही है aerobic fitness मेजर? हमारी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मेजर करने के थ्रू हो रही है। तो जो हम मेजर कर रहे हैं वो हमारा क्या मेजर हो रहा है? कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मेजर हो रहा है। किसके थ्रू? जो हम अपनी वॉकिंग टेस्ट कर रहे हैं उसके थ्रू। सो जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है, जो ही हमारी एरोबिक कैपेसिटी और VO2 max दोनों को भी वही दोनों वर्ड डिफरेंट वर्ड है मगर मीनिंग्स तीनों का सेम है। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बोल लो या एरोबिक फिटनेस बोल लो या मेजरमेंट ऑफ VO2 max बोल लो, तीनों का टर्मिनोलॉजी मीनिंग एक ही है। नाउ इसमें यूज क्या होता है? रॉकपोर्ट फिटनेस टेस्ट में एक स्टॉप वॉच होगी और आपको 400 मीटर ट्रैक चाहिए, वेल लेवल ट्रैक चाहिए, जिसमें आप उन्हें वॉकिंग कराओगे। और वॉकिंग कितनी कराओगे? जब वॉकिंग कराएंगे हम तो वॉकिंग कितनी होगी? वॉकिंग होगी 1 माइल। 1 माइल में कितने आ जाते हैं? 1 माइल में आते हैं 1609 मीटर। 1609 मीटर। वन माइल में आते हैं 1609 मीटर। एक मील में 1609 मीटर, तो 1609 मीटर वॉक करते हैं। कौन? इसमें रॉकपोर्ट फिटनेस टेस्ट में जो एक वेल लेवल ट्रैक होता है उसमें। सो कितने राउंड लगेंगे? 4 राउंड लगेंगे। तो 4 राउंड वॉकिंग करेंगे। वॉकिंग करने के बाद स्टॉप वॉच तभी स्टार्ट हो जाती है जब स्टार्ट करते हैं, जब एंड करते हैं तो स्टॉप वॉच एंड हो जाती है। सो इसमें फिर VO2 max, अब इसके थ्रू VO2 max मेजर करते हैं, उसी से हमारी क्या कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मेजर होती है। नाउ VO2 max में एक फॉर्मूला है, इसमें ये जो टाइम है वो हम इसको उसमें सेकंड्स में लिखेंगे। टाइम्स को इन सेकंड, या वी कैन से दैट मिनट, इन मिनट्स एंड हंड्रेड्स ऑफ द मिनट्स, उसके मिनट्स में लिखते हैं हम टाइमिंग, ठीक है ना। नाउ हेयर देख मिनट्स में लिखेंगे इस टाइम्स को, किसमें? एरोबिक फिटनेस टेस्ट को, रॉकपोर्ट फिटनेस टेस्ट को, जो एरोबिक को साइन दे रहा है और जिसमें हम VO2 max मेजर कर रहे हैं। सो हम कार्डियोवास्कुलर बोल सकते हैं कि हम VO2 इससे मेजर कर रहे हैं या हम इससे एरोबिक फिटनेस को मेजर कर रहे हैं। सो इसके बाद वन माइल करते हैं तो जो आपका टाइम आता है वो टाइम लेते हैं। उसके बाद फॉर्मूला है किसका? आपका VO2 max को मेजर करने का। VO2 max को मेजर करने का फॉर्मूला क्या है? अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इस रॉकपोर्ट टेस्ट से VO2 max मेजर करना। VO2 max मेजर होगी क्या होगी? हमारी एरोबिक कैपेसिटी, हमारी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस की कैपेसिटी चेक हो रही है, जिसे हम एरोबिक कैपेसिटी बोलते हैं। तो
तो हमें क्या करना, मेन हमारा टारगेट क्या है, VO2 max चेक करना है। तो VO2 max फॉर्मूला बोलता है, VO2 max फॉर्मूला says that 132.853 ये कांस्टेंट वैल्यू जो फॉर्मूले में ओरिजिन हुई थी, जो इन्वेंट किया था फॉर्मूला, तो ये कांस्टेंट वैल्यू इसमें पुट रखना ही है, हम इन्हें फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। देन इसके बाद माइनस ब्रैकेट 0.0769 मल्टीप्लाई बाय वेट। वेट भी किस में रहेगा, वेट रहेगा किसमें, वेट इन पाउंड्स, यहां पर क्या रहेगा, पाउंड में रहेगा वेट, पाउंड। जो आईवी का साइन है, आईवीएस सॉरी बाद में बताऊंगा। वेट के बाद आता है माइनस के बाद फिर होल ब्रैकेट, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट 0.03877 मल्टीप्लाई बाय एज एंड प्लस 6.315 मल्टीप्लाई बाय जेंडर, ठीक है, ये प्लस है 6.315 मल्टीप्लाई बाय जेंडर, इसका ब्रैकेट लग जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का यूज हो रहा है, प्लस, और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा है, ये क्या हो गया, जेंडर। माइनस आता है हमारा -3.2649, ये कांस्टेंट वैल्यू है। फिर मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड फिर होल ब्रैकेट एंड माइनस फिर 0.051565 इंटू हर्ट मल्टीप्लाई बाय हर्ट। सो इसमें जो डिफरेंट जो वैल्यूज हैं, इन पूरी वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये बाकी वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यू, इसको हटा नहीं सकते हम। और ये डिफरेंट जो जेंडर्स मेल्स हैं, इनके डिफरेंट मार्क्स हैं। सपोज यहाँ पर क्या हुआ था, प्लस, देन 6.35, इसके बाद जेंडर, माइनस जेंडर के बाद माइनस 3.2649 मल्टीप्लाई बाय टाइम, 2649 मल्टीप्लाई बाय टाइम, माइनस 3.2649 मल्टीप्लाई बाय टाइम होल ब्रैकेट। अब इसमें क्या लगेगा, कंप्लीट ब्रैकेट लगेगा। कंप्लीट ब्रैकेट कहाँ पे, यहाँ पर लगा। देन कंप्लीट ब्रैकेट कहाँ लगेगा, टाइम के बाद कंप्लीट ब्रैकेट मींस, कंप्लीट ब्रैकेट का मींस पहले इसे सॉल्व करना है, देन इसके बाद इनका यूज करना है। इसके बाद माइनस ब्रैकेट के बाद माइनस के बाद 0.1565 इंटू हर्ट रेट। ये आपका फॉर्मूला रहेगा VO2 max है। VO2 max मेजर हो जाएगी तो ये आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस चेक हो रहा है। सो अब इसमें जो वेट है वो वेट आपको पाउंड्स में रखना है। एक वेट होता है केजी में और एक वेट होता है पाउंड्स में। सो यहाँ पर वेट पाउंड्स में रखना है। देन एज आपके ईयर्स में रखनी है, ईयर।
देन आपका जेंडर, जेंडर दो होते हैं, मेल के मार्क्स हमें मेल की वैल्यू हमें रखना है मेल वैल्यू 1, फीमेल वैल्यू 0। सो यहाँ पर जेंडर में मेल की वैल्यू 1 रखनी है, फीमेल की वैल्यू 0 रखनी है, माइनस इतनी ये वैल्यू टाइम की जगह हमें टाइम्स इन मिनट्स में लिखना है, मिनट्स में टाइम लिखना है, देन मल्टीप्लाई मिनट्स में टाइम लिखना है, देन मल्टीप्लाई इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट को हमें पुट करना है, हार्ट रेट किसमें, पर बीट पर मिनट में जो हार्ट रेट आती है उसको यहाँ पर पुट करना है। सो देन वेट, एज, टाइम, जेंडर एंड हार्ट रेट, ये हमें 4-5 मिनट वेट आता है, एज आती है, टाइम आता है, जेंडर आता है, हार्ट रेट आता है, ये डिफरेंट वैल्यूज है, ये सारे पुट करने हैं हमें। पुट करके फिर हम VO2 मैक्स निकालते हैं और VO2 मैक्स जो आती है वो हमारी किस एज के रूप में, ये रॉकफोर्ड टेस्ट किसमें काम करेगा, ये काम करेगा एज बिटवीन 30 to 79 ईयर्स, 30 to 79 ईयर्स के उन पर पीपल्स पे ये फैक्ट, ये VO2 मैक्स फॉर्मूला, ये रॉकफोर्ड फिटनेस टेस्ट वर्क करेगा। ये हमारा VO2 मैक्स मेजर है, VO2 मैक्स मेजर हो जाएगी तो आपका क्या कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मेजर हो जाएगा। सो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉकफोर्ड फिटनेस टेस्ट, 2 फॉर्मूला फॉर मेजर द cardiovascular endurance. Now our next test for senior citizen test, Reekley and Johnson test. Write down please. Reekley and Johnson test. Reekley and Jones test. Reekley Jones test mainly measure for the, yeah, we can say that made for the senior citizen test. Mainly made for the senior citizen test. In 2001 में रॉकवर्ड आर रीकली और सी जेसी जोन्स एंड रॉकवर्ड आर वो ई रीकली कब 2001 में, ठीक है ना। 2 पर्सन्स थे जिन्होंने ये मेथड यूज की थी, इसका मेथड का नाम था सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। इसका क्या नाम है, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, और इसे दूसरे नाम से जान जाते हैं, इसे बोलते हैं फुलरटन फंक्शनल फिटनेस टेस्ट। इसे क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, फुलरटन, दूसरे नाम से क्या बोलते हैं इसे, फुलरटन फंक्शनल फिटनेस टेस्ट। इसे बोलते हैं क्या, 2001 में आता है, इसे बोलते हैं फुलरटन फंक्शनल फिटनेस टेस्ट, आल्सो नोन एज। इसे दूसरे नाम से जान जाते हैं, जिससे बोलते हैं फुलरटन फंक्शनल फिटनेस टेस्ट, जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के लिए इन्वॉल्व है। ये इसका ओरिजिन हुआ था कैलिफोर्निया स्टेट में, इन अमेरिका। अब इसमें डिफरेंट बैटरीज हैं, हम 6 बैटरीज हैं जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी से इन्वॉल्वमेंट है, नॉर्मल एक्टिविटी की हैं। अब हम डिस्कस करें कौन कौन सी फिटनेस बैटरीज हैं। फर्स्ट है आपकी चेयर स्टैंड फॉर लोअर बॉडी, चेयर स्टैंड में क्या होता है, चेयर स्टैंड में अप करना है, डाउन करना है, और 30 सेकंड तक हमें मेजर करना है। इसमें क्या मेजर होगा, उनकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक होगी, किसमें, चेयर स्टैंड टेस्ट में उनकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक होगी, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है तो हमें स्ट्रेंथ नहीं बचती, तो ये फर्स्ट बैटरी है चेयर स्टैंड टेस्ट। नाउ इसके बाद आता है आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट में क्या होता है, आर्म कर्ल टेस्ट ये टेस्ट इसलिए सीनियर सिटीजन टेस्ट। ऑप्शन आ सकता है इनमें से कौन सा सीनियर फिटनेस टेस्ट है। आर्म कर्ल टेस्ट क्या करते हैं, 5 पाउंड का वेट लेते हैं और देन 30 सेकंड तक अप एंड डाउन करते हैं, तो मेजर करे जाते हैं 30 सेकंड्स में। एंड इसके बाद आते हैं चेयर सिट एंड रीच टेस्ट।
इसमें 40 इंच की जो चेयर होती है उस हाइट पर बैठते हैं और अपनी बैठे सीधे चेयर पे बैठे सीधे अपने टो को टच करते हैं। नाउ आता बैक स्ट्रेच टेस्ट, अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। चौथा बैक स्ट्रेच। बैक स्ट्रेच टेस्ट में क्या होता है, आपके दोनों आर्म्स के बैक स्ट्रेच को चेक किया जाता है। जितना आपके बीच में गैप रहेगा यहाँ पर, तो आपके दोनों हैंड में और आपकी बैक में उतनी स्ट्रेंथ रहेगी। नाउ नेक्स्ट ये जाता है आपको उस जितना कम गैप रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। नाउ आपके लिए किया जाता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसमें क्या हो जाता है, चेयर में बैठते हैं, जो 8 फुट चलते हैं, फिर वापस राउंड में आते हैं, फिर बैठते हैं। सो ऐसे क्या होता है, जो जिसका बेस्ट टाइम रहता है उसको मेजर किया जाता है। ये आपके एजिलिटी के लिए मेजर होता है। नाउ लास्ट आता है आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट में क्या होता है, आपको 600 मीटर वॉक करना होता है। 600 मीटर में आफ्टर टेस्ट में क्या करते हैं, 600 मिनट वॉक करते थे। इसमें 6 मिनट वॉक करना है और 6 मिनट वॉक करके आपको अपनी एंडोरेंस चेक करनी। इसमें क्या होता है, एंडोरेंस चेक होता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट में क्या होता है, आपका एंडोरेंस मेजर होता है। सो ये आपके 6 मिनट हैं जो रिकली जॉनसन टेस्ट, जो सीनियर फिटनेस टेस्ट के लिए इन्वॉल्व है। चेयर स्ट्रेंथ टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सेकंड रिस्ट टेस्ट, बैक स्ट्रेच टेस्ट, 8 foot up and go test, and last 6 minute walk test. There is different tests for Reekley and Jones test measure our motor component and motor fitness. So here our test and measurement in sports is end. Now our last chapter related to our fitness, we can say that related to our syllabus. Now biomechanics in sports, and here physiology and injury of sports. Now here test and measurement in sports khatam, and here Reekley and Johnson test, our last step test. I think so, hope you are some concept is clearly. Have a good day. Thank you.